Yeah, मैम सेंटर से लिखना सेंटर यहाँ पर पढ़े जो चुप नहीं जाएंगे नहीं अब वो दे दो ना 2 मिनट चले मेरी कनेक्ट किया मैंने Pradip, always good to see you. You're here for DP Music presenting the song today, the beautiful Ghazals by Deepak Panditji, a veteran, a legend in himself. Absolutely. I have been, working with Deepak ji since very, very long now, and very closely. But something like this is happening for the first time, and I'm so happy for him. So excited for everybody to listen to this album. It is absolutely outstanding. The musicality that he carries, the legacy that he carries, absolutely heart touching. So I want to wish him all the luck, and looking forward to this launch. आपने बहुत you worked a lot with him and you can pass. That's okay. Yes. See you inside. I've worked so much with him after the compositions with I've been there. I've done shows together. So उनकी कौन सी composition है और जो आप आज you would like to dedicate it back to him. Can I reveal his song? Sure, please go ahead and you can compose that. मुझे ये पूरा एल्बम इतना पसंद है पारुल. When I heard this album for the first time after he mixed and everything, I think all the tracks are just unbelievable. I love all the tracks, and I have known his taste for so long that I know what's coming next. So from his album, everything is my favorite, but my most favorite is the track that he's going to play for everybody today. तो बहुत ही खूबसूरत गज़ल है. मुझे बहुत पसंद है इस एल्बम की. उसकी 2 लाइनें मैं गा के नहीं पर मैं सिर्फ बोल कर सुनाऊंगी. डर है जलने का तो आग लगाते क्यों हो, प्यार करते हो तो छुपाते क्यों हो. बहुत खूबसूरत गज़ल है. जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा. थैंक यू. Music like you, even Deepak ji is a veteran and doing such good work in compositions. आज उनकी ये first singing जो उनकी प्रस्तुति है वो आज unveil होने वाली है with legends around. Tell us your experience with him and about his music. Firstly, it doesn't feel like it's his first album. Deepak ji is a legend, and I'm so happy for him. It's an album which is long time coming, and Dil Se Ruh Tak, I'm sure it'll reach music lovers all over the world, and I'm just so happy for him. He's an incredibly talented. He's legendary. His work is incredible. His musicality is simply phenomenal. So we're all here to celebrate this wonderful occasion with him, and we're all very happy for him. There's a lot of actually. Deepak ji and I worked together on a project called Meri Diwangi. So we worked together, and the thing about his music is he's always taken a very bold step in terms of presenting what he loves, and you actually require guts for that, and the richness in his music is portrayed not only through his the music itself, the production, all the compositions, and the lyrics he chooses also has a great effect on listeners,
it's something very soulful, very deep. So whatever that he chooses to do, whether it be his own songs like he's done today, or for others like myself and so many other artists, it's always brilliant. Thanks so much. Thank you. इधर यहाँ पे कैमरे में हाँ एक बार अंदर लिख के यस आज आप दीपक जी के लिए आए हैं यहाँ पे, जिनकी पहली सोलो एल्बम जिसे कहेंगे दिल से रूह तक एक जर्नी है जो हार्ट से सोल तक जाती है। आज आपका यहाँ होना बहुत सौभाग्य है हम सबके लिए कि आप आज उसको अनवील कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़े भाग्य से ऐसा दिन आता है जो कि सिवाय स्वर के और लय के और कुछ दूसरा से नहीं दिखाई पड़ता। और बहुत रेयर है कि ऐसे सुरीले लोग बजा भी रहे हैं, ऐसा वाद्य बजा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, ऐसे गावे भाभी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। बड़ी सुमन में इतना अच्छा इतना सुरीला गाने का बिना आज तक ऐसा गाना सुना नहीं। दीपक जी, आप बहुत ही लकी हैं कि आई प्रसाद जी मंदिर जी पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार आपके कई बार मेरा इनके साथ एग्रीमेंट है ये। जब पहला फर्स्ट सिंगल जब मैंने कौशिकी जी के साथ किया था, कौशिकी चक्रवर्ती, तब मैं बापू जी के पास गया था और बापू जी ने उसी प्यार से, उसी आशीर्वाद से, उसी शिद्दत से उसको अपना आशीर्वाद दिया था, तेरा ख्याल। एंड देन इनहेरिटेंस जब किया था प्रतिभा जी के साथ, वहाँ पे भी आकर के वैसा ही प्यार और वैसा ही आशीर्वाद। फिर जब बात आई कि मैंने फ़ोन पे फ़ोन किया कि बापू जी मिलना चाहता हूँ, बोले आओ बिल्कुल। हमारी जो दीदी पुष्पा, उनसे मेरा संपर्क रहता था। जब मैं गया और एल्बम सुनाया, मुझे इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला। बिना सुने या तो जो कहेंगे आप करेंगे। पहले तो उन्होंने बिना सुने ही कह दिया था कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा ही है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भरोसा, ऐसी शख्सियत का ऐसा भरोसा अगर हमारे ऊपर है तो उस भरोसे को बरकरार रखें, कायम रखें और हर दिन सीखते हैं और ज़िंदगी भर सीखते रहें। और कुछ अगर गलती हो तो हम बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि हमारे ऊपर छत्र छाया
बाबू जी की छत्र छाया हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं। तो जब मैंने सुनाया तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मेरे पास एक्चुअली अल्फाज ही नहीं है कि जो पहली हाज़िरी लगी है, पूरा एल्बम मैंने सुना साथ में बैठ कर के। इन्होंने बोला कौन सी तारीख है, मैंने बोला 21 तारीख। बोला मैं आ रहा हूँ और मुझे मिठाई खिलाई, शुगर फ्री मिठाई खिलाई अंजीर की। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, शायद मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए जो हम इनकी छत्र छाया हैं। यही अच्छे कर्म किया। इतना सुंदर गाना मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। बड़े अच्छे अच्छे लोग पाकिस्तान के, भारत के सब करते हैं एक्टिविटी, लेकिन ये कितनी अलग बात है, अलग छाया है, अलग लाइट है, अलग और रोशनी है, कमाल है। मैं तो नहीं भी बुलाते तो मैं आ जाता। अरे मुझे भूले क्यों आप? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ में बाबूजी हमेशा शामिल हैं, परिवार सहित। मेरी बहन पुष्पांजलि दीदी और बड़े भैया सब लोग। तो ये मेरी खुशकिस्मती, बस मैं यही कहूँगा। और मैं ये आप सबसे भी एक निवेदन और एक आग्रह करूँगा कि हो सके, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। मीडिया चाहे तो ओवरनाइट किसी को भी हीरो बना सकता है, किसी को भी ज़ीरो बना सकता है। तो आप लोग जैसे जिस प्यार से आए हैं, खास करके पारुल जी, हमेशा आप सपोर्ट करते हैं संगीत को, क्लासिकल म्यूज़िक को। तो बस इस म्यूज़िक को सपोर्ट करें और जो आपको लगता है दिल से कि ये अच्छी चीज़ है और ये दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो उसमें आप अपना योगदान हमेशा बनाएं। क्या आपकी यू आर लेजेंड योरसेल्फ, आज आप इस मुकाम पे हैं जहाँ पर भी आपको एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि आपकी कॉम्पोजिशन से, आपकी गायकी, हर चीज़ पे मुझे तारीफ है। आप इस स्टेज में आपको कभी ऐसा लगा कि यू नो कुछ एडवाइस आपको मिली और मुझे जैसे आपने कहा हम हमेशा सीखते रहते हैं हर जीवन के हर पड़ाव में, आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि पटेल जी ने कुछ कहा हो ये कॉम्पोजिशन में या कोई फीडबैक कुछ? मैंने तो जब मैंने कौशिकी जी के साथ जब वो पहली गज़ल की थी, सिंगल जो उनके साथ की थी, तो वो उसका कलर जो था नट भैरव का था। तो वो मैंने माइक पर बोला कि मैंने उनकी का ही सुन करके स्टेज का लाइव परफॉर्मेंस जाकिर जी तबले पे साथ दे रहे थे बाबू जी का, उससे इंस्पायर होकर के मैंने उसके सुरों को पिरोया। तो ये हमारी इंस्पिरेशन नहीं मैं कहूँगा, हम ये कहेंगे कि हमारे साथ हमारे साक्षात गुरुवर हैं जिनसे हम सीखते हैं और सीखते रहेंगे। नया तो मैं बोलता हूँ, अगर कोई ऐसा बोले कि मैंने कुछ नया किया है तो मैं एग्री नहीं करता। नया कुछ भी नहीं है, पुराना इतना हो चुका है। आपने किया है तो वो ये तोड़ मरोड़ के कुछ जो कर देते हैं वो नया हो जाता है। तो पिताजी से शंभू जी से, शंकर शंभू जी में से शंभू जी का मैं सबसे छोटा लड़का हूँ, उनसे ही शुरुआत की जो तालीम थी कि पद्धति जो थी सिखाने की, पहले गाना सीखो, और वो भी गाना भी मतलब क्लासिकल चलन के साथ। 8 प्रहर है तो 8 प्रहर में कितने राग हैं, कितने उसके जो प्रहर के मूड चेंज होते हैं, तो और विलंबित ख्याल क्या है, ध्रुपद गायकी क्या है, टप्पा क्या है, अलग अलग शैली के अलग अलग गाने का स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। तो सिखाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि रेडियो पे ऑडिशन फॉर्म भर दिए। तो वो मस्ट है, पंडित जी को तो पता है कि आपको मिनिमम 150-200 राग बाय हार्ट होने चाहिए। तो उस चक्कर में सीखना और शुरू हो गया कि उसमें फेल ना हो जाए ऑडिशन में। फिर उसके बाद 4-5 साल तबला सीखा, फिर सीखने के बाद वायलिन पे आया। पिताजी यूज्ड टू प्ले वायलिन, तो पिताजी से ही वायलिन भी सीखा। मूर्छना भेद जो संगीत जानते हैं उनको पता होगा, गंधार को सा करना, मध्यम को सा करके बजाना बिना ट्यूनिंग चेंज किए। फिर राम प्रसाद जी से वेस्टर्न म्यूजिशियन सीखा, प्यारेलाल जी के पिताजी से। तो अभी भी सीख रहा हूँ, ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा। देन सडनली आई रियलाइज कि जग्जी जी के साथ जब मैं बजाता था तो वो भी मुझे माइक देते थे, तुझे जब मन में आया तो तू कुछ बीच में गा, या अब मैं करता भी रहता था। कभी सरगम गा दी बीच में, कभी पलटे लगा दिए, कुछ ताने मार दी, कुछ शेर व शायरी कर दी। ऐसे करते करते
गाना तो था ही पहले से। फिर पिछले साल दुर्गा जसाद जी ने कॉन्सर्ट किया था ताजमहल। उन्होंने बोला तू गाएगा, वायलिन तो है ही तेरा लेकिन तू गाएगा, तू नहीं तुम गाओगे। तो उनका छोटा भाई जैसा ही तो गाया और पब्लिक को अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक एल्बम किया जाए। इस ज़िंदगी में एक बार तो एक मौका मिलता है कि अपने दिल की भड़ास निकाल। तो बेसिकली जो दिल में था मैंने बस वही पेश किया है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जगजीत अंकल भी कहते थे, मेरे पिताजी भी, सब बुजुर्ग जितने भी हैं हमारे, सब हमारे गुरु ही हैं, कि इम्प्रेस करने के लिए म्यूज़िक कभी मत बनाना। किसी को इम्प्रेस करने के लिए म्यूज़िक होना ही नहीं चाहिए। आपकी आत्मा खुश होनी चाहिए। जब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बरकत हो ही जाती है। इसलिए इस एल्बम का नाम है दिल से रूह तक। और इसमें एक और ख़ास बात है जो मैं कहना चाहूँगा। मेरे भाई इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे बड़े भाई हीरा पंडित, 9 महीने पहले उनका देहांत हो गया। तो बहुत कमाल के म्यूजिशियन तबला वादक थे। इस एल्बम में बहुत मिनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन है। संतोष मोलेकर जी हैं ग्रैंड पियानो पर, राहुल देव ऑन बेस गिटार, संजय दास उर्फ बापी, जिसको हम बापी कहते हैं, वो गिटार पे हैं, राज हैं गढ़पाले परकशन। 2 गाने में मैंने भी वायलिन बजाया। तो मैंने ये एल्बम खास करके जो पहली गज़ल है जो मनोज मुंतशिर साहब ने लिखी है, तेरे जाने का तो सदमा नहीं है मगर बरसों से दिल धड़का नहीं है, ये मैंने मेरे भाई हीरा पंडित को डेडिकेट की, उनको ही ट्रिब्यूट की और पूरा एल्बम भी उनको ही ट्रिब्यूट किया है। और मेरी पुरानी फाइल से मैंने जितना उनका तबला था वो निकाल के मैंने ट्रांसपोज किया, उसको ट्यून किया और उसको उस BPM पे ला करके स्ट्रेच करके वो मैंने तबला पूरा इसमें एल्बम में यूज़ किया। थैंक यू। आपने कहा कि आत्मा तो ये म्यूजिक से रिलेटेड करती है, पर आपका जो अपना सोच है म्यूजिक कॉम्पोजिशन या सिंगिंग, आप इसको ग्रांट करेंगे अपने एक्चुअली एक देखिए जो थोड़ा बहुत जो एक लोग जानते हैं वो वायलिन की बदौलत जानते हैं। वायलिन मेरी पहली पहचान है, लेकिन सीखने का कोई एंड नहीं है, समुद्र ही है। आप जितना डीप जाएंगे आप जाते ही रहेंगे। गाना सीखा ही है, म्यूज़िक सीखा है, नोटेशन सीखा है, उसका पद्धति सीखी है, अरेंजमेंट की पद्धति सीखी है। अगर मैं ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कितने लोग हारमोनियम पे म्यूज़िक बना देते हैं, वो अरेंजमेंट नहीं होता। आपको हर इंस्ट्रूमेंट की रेंज पता होनी चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट की रेंज के अलावा उसकी प्लेइंग ऑफ स्टाइल क्या है। अगर सरोद है तो वो मीन वर्क है, उसमें आप स्टैगेटो नहीं कर सकते, सरंगी में स्टैगेटो नहीं कर सकते। तो वो करते सीखते आज भी सीख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, और ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा। तो ये इच्छा थी कि एक एज ए सिंगर एक एल्बम करूँ। वैसे मैंने सिंगल्स बहुत गाए हैं, करीबन 100-150 गाने गा चुका हूँ मैं, यहाँ वहाँ। बट ये एज एल्बम जिसको कहते हैं, एज गज़ल सिंगर, फर्स्ट सोलो एल्बम ये पहला है। और ये मेरी फिर से मैं कहूँगा कि खुशकिस्मती है कि बाबूजी के हाथ से इसका विमोचन होने जा रहा है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे और उनका भी आशीर्वाद बापूजी को बापूजी वैसे ही देते रहे, वैसे ही मिलता रहे। इनकी लंबी उम्र हो और अच्छी सेहत रहे और इनकी छत्र छाया हम सब पे बनी रहे। आप कुछ जो म्यूज़िक कॉन्शॉर्स हैं, जो म्यूज़िक के प्रेमी हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज आज के समय में जाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे जो म्यूजिशियंस, जो इमर्जिंग म्यूजिशियंस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहते हैं या सिंगिंग में या कॉम्पोजिशन में, आप उनको क्या मैसेज ये हमारा जो संगीत है कॉम्पिटिशन के लिए करते हैं, हम ऑडिशन करें, बस आप किसी का दिल लूट लें तो सबसे बड़ी बात होती है। पहली बार में बहुत नजरिए शुदा है अच्छे कलाकारों से, लेकिन जो हमारे घर कर गए हमारे दिल में तो कभी नहीं बोले। वो सब कहता है कि इसका वायलिन बजाना, कोई प्रोग्रामर दूसरे वाद्य में बजाना, लेकिन गाना जो गाया उन्होंने पहली बार आज तक उनमें मिठास तो शुदा नहीं।
एक ही शिकायत रहेगी, मुझे नहीं बुलाया। कहा सुना मुझे बुलाते थे, मजा नहीं। लोग याद कर मेरे अहोभाग्य मेरी एक इच्छा है, मेरी औकात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी बापूजी ने जो कहा है इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है, मेरी हैसियत नहीं है और ना ही मैं ये इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कह रहा हूँ, ना मेरी मजाल है ना मेरी औकात है, बट मैं एक बाबूजी की कंपोजिशन या जो भैरवी बजाना चाहें या पीलू बजाना चाहें या पूरिया गाना ये बजाएं और मैं इनके साथ पीछे पीछे बजा लूँगा, वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। एक मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। ये नोट करिएगा, सबको सुनाइएगा इन्होंने जो कहा। 100% बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि फिर से कह रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, बट मैं इनको फॉलो करता रहूँगा पीछे बैठ करके। बिल्कुल, हम ईश्वर का बोलते हैं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये ईश्वर रूपी है जो हमको दर्शन कराता है कि ईश्वर कभी दिखेगा नहीं, बट ईश्वर ऐसे दिख जाता है। तो ये बस मैं ज़्यादा बापू जी को परेशान नहीं करूँगा। मुंबई आया था तो इनके पापा और चाचा सबके साथ मैंने काम शुरू किया। अभी तक मुझे याद है, सब सुरीले लोग थे, क्या करें। आम के फल पेड़ में आम ही निकलेगा ना, क्या लाजवाब है। सच्ची मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, एक आदमी वायलिन बजा रहा है और ऑर्केस्ट्रा में बजा रहा है, उधर गा रहे हैं। मैंने भगवान करे और ये अच्छा गाना, मुझे खूब अच्छा नाम हो, मुझे निकलने क्या। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे बाप, बहुत प्यार। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। आप ऐसे ही बनाते ही रहिए, करते रहिए, किसी में बजाया होगा जो लोग साथ हो रहिए। मैं तो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि इनके पीछे पीछे मैं बजा के एक रिकॉर्ड करूँगा। हाँ आगे तो मैं Thank you. अरे कैसा लगे तो गाना गाओ पूरा गाना अरे बाबा मैं भी आया था
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड। जी जी जी। वो तो अमेरिका में सीरियस बात हो रही तो ऐसे बहुत मैं खुश हूँ यार। स्वप्निल लाइट कर ये एक लंबी यात्रा का वो स्वर्णिम मकाम है जिसके ऊपर कब से आंखें गड़ी थी, इंतजार था, या यूं कहूं कि इस दिन के लिए दिल बेकरार था। आज एक बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुंदर एल्बम हम सभी के सामने रिलीज होने वाला है, दुनिया के सामने आने वाला है। इससे पहले हम चर्चा करें उस कलाकार की जो हमारे सामने ये एल्बम ला रहे हैं, आई हैव अ फ्यू पीपल टू थैंक, जिनकी तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। दिस इवनिंग इज सपोर्टेड बाय HSBC म्यूचुअल फंड, मिस्टर कैलाश कुलकर्णी जी एंड मिस्टर ओजस जी। थैंक यू सो मच, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। Also Star Agri, Mr. Amit Agarwal, thank you so much, without you. और अब दोस्तों आते हैं उस कलाकार पे जिनकी वजह से ये महफिल सजी है, ये खूबसूरत एल्बम हम सभी के सामने आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट, हम सभी जानते हैं, हम सभी के चहीते, वैसे ये किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि भारतीय संगीत परंपरा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ संगीत नहीं रचते, एक संस्कृति रचते हैं, जो सिर्फ अपने साज को नहीं बजाते, वो वक्त को थाम लेते हैं। पिछले 3 दशकों से दीपक पंडित जी भारतीय संगीत में अपना योगदान देकर उसे और समृद्ध बना रहे हैं, भले वो वायलिन वादक हो, संगीत संयोजन हो, या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। इन्होंने संगीत की दुनिया को अपना शानदार योगदान दिया है। आप सभी जानते हैं, और अगर ना जानते हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदुस्तान की मशहूर हिंदू कव्वाल जोड़ी श्री शंकर शंभू जी के सुपुत्र है दीपक पंडित जी। लंबी और खूबसूरत म्यूजिकल यात्रा का हिस्सा रहे हैं। 2024 में दोस्तों दीपक पंडित जी ने एक बड़ा कदम उठाया और दुनिया के सामने लॉन्च किया अपना म्यूजिक लेबल, दीपक पंडित म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज DP म्यूजिक। इसके तहत इन्होंने कई आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी श्रेया घोषाल और समीर पंडित की आवाज में कैसे जिए एल्बम के साथ। फिर उसके बाद तो याद में तेरी, नवाज दो, रुस्वा, हम सफर, पूछा किसी ने, एक सिलसिला ही चल पड़ा क्रिएटिविटी और सक्सेस की पीक को छूने का। तब से ये बहुत से आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं और बहुत से आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने की तैयारी में है DP म्यूजिक। टू नेम अ फ्यू, प्रिया सरैया, राकेश पंडित जी, पृथ्वी गंधर्व, प्रियंका बर्वे, प्रतिभा सिंह बागेल एंड मेनी मोर। और फाइनली दोस्तों, आज ये लंबी संगीत की यात्रा वहां आकर ठहरी है जिसे कहते हैं और महसूस कर सकते हैं दिल से रूह तक। क्या बात। हम सभी के सामने आने वाला है एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम जिसे हम और आप विटनेस करने वाले हैं। आई एम श्योर कि दीपक पंडित जी के संगीत क्रिएशंस के फैंस, उनके चाहने वाले, संगीत प्रेमी और संगीत को समझने और सुनने वाले बहुत एक्साइटेड हैं
मेरी ही तरह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस एल्बम के अंदर वो 5 गजलें जो हम सबके सामने आने वाली हैं क्या नया मैजिक लेकर आएंगी। लेट मी टेल यू ऑल दैट ऑल दीज 5 गजल्स आर अ पीस ऑफ हिज हार्ट, क्योंकि कोई भी कलाकार जब भी कुछ भी क्रिएट करता है, ये 5 हमारे सामने आई हैं, लेकिन इसके पीछे न जाने कितनी रिजेक्टेड कॉम्पोजिशंस या स्ट्रगल्स या क्रिएटिव ब्लॉक्स होंगे, और हमारे सामने आया है ये फाइनल प्रोडक्ट। इस एल्बम को जब आप लोग सुनेंगे तो नोटिस करेंगे कि इस एल्बम में मोमिन, डॉक्टर बशीर बद्र, मनोज मुंतशिर, शकील आजमी जैसे कलाकारों की रचनाएं शामिल हैं, और मनमोहक गायन, दिल को छू जाने वाला संगीत और खूबसूरत संगीत संयोजन का श्रेय जाता है दीपक पंडित जी को। दोस्तों, इस एल्बम में दीपक पंडित जी के बाकी हर क्रिएशन की तरह आप नोटिस करेंगे कि जितना ये संगीत पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, क्लासिकल है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, उतना ही मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है और जमाने के साथ चलने वाला है। इन दो स्टाइल्स को ब्यूटिफुली ब्लेंड आई थिंक यही कर सकते हैं। इनको सुनने वाले ये बात जानते हैं और मेरे साथ अग्री करते हैं। इस एल्बम के हर गाने में मेलोडी और इमोशन को बहुत महत्व दिया है, यानी कि रूहदारी को बहुत महत्व दिया है। अब इतनी चर्चा हो गई है और मैं इतना कुछ बोल गई हूँ, तो आप ही की तरह मैं भी अब और इंतजार नहीं कर सकती। मन में बहुत से सवाल है कि इस एल्बम के अंदर क्या क्या छुपा है, हम सभी के लिए क्या क्या म्यूजिकल तोहफे हमें मिलने वाले हैं। ये क्रिएटर्स के यानी दीपक पंडित जी के दिल से हर सुनने वाले के रूह तक कब पहुंचेगा, दिस इज द मोमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। और हम सब के मन में जो सवाल हैं कि क्या है वो गजलें, कैसे हैं वो गाने, ये सारे सवालों के जवाब लेकर एक ही इंसान हमारे सामने आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के पास है सारे जवाब। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई टेक इमेंस प्रिविलेज in inviting and welcoming a legendary artist in classical contemporary music, an ace violinist, music director, music composer and singer, none other than respected Deepak Pandit ji. The star of the evening. आपसे बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ जानना है। दीपक पंडित जी, yet another creation, दिल से रूह तक। The platform is yours. थैंक यू। सबसे पहले तो राशि के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आपने सबने सुना होगा राजेश जौहरी जी का नाम, उनकी सुपुत्री है, उनकी डॉटर है, और इतनी सुरीली है खुद, तो इसलिए इसको परिचर्चा देखने की ज़रूरत नहीं है, और उसने बड़ा अच्छे से स्टडी सब कुछ किया है। थैंक यू राशि, थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले सबको प्रणाम मेरा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो बेटे हैं उनसे वही छोटे, बाकी सब मुझसे बड़े हैं, अब मुझे ऐसा लगता है। त्रयेश भी है। हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से गाना शुरू किया है, शुरू ही किया था। जो तालीम थी पिताजी की कि पहले गाना सीखो, और उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट तो थे ही, सुर 12 सुर छपने चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट की इच्छा थी कि कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूं, तो बोले पहले गाना सीखो। तो जो गाना सीखता है उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाएगा या सीखेगा, एसी ठीक है, बढ़ाएं थोड़ा, अच्छा, तो उसका बजाना थोड़ा अलग होगा। तो उस समय ये बातें नहीं समझ में आती थी, तो रेडियो का फॉर्म भर दिया। मैं बस छोटा सा इसलिए ये जर्नी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि तू वायलिन छोड़ रहा है क्या। तो वायलिन मेरी छोटी मोटी जितनी भी जो पहचान है वो वायलिन की ही है, और वायलिन जिंदगी भर रहेगा। लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है वो लोगों को नहीं पता। गाना सीखा, क्लासिकल की ऑडिशंस दिए रेडियो पर, उसमें कंपलसरी था कि 150 राग आने चाहिए, कौन से प्रहर का राग, कौन से समय का राग से क्या छुपा है हो। उस ट्रेनिंग के दौरान वो सारी चीज़ें सीखना मतलब एक अनिवार्य था, तो मजबूरी में सीखा, लेकिन आज उसका मज़ा आ रहा है। फिर जाके रिदम 5 साल तबला सीखा, बजाया भी, ढोलक भी बजाता था। फिर आया फाइनली वायलिन पे, जो पिताजी का साथ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पिताजी वायलिन भी बजाते थे, उनसे ही सीखा।
और सीख रहा हूँ। बाकी सुन के आप सब जो दिग्गज यहाँ हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको देख करके सुन करके सीख रहा हूँ। तो मन किया कि कुछ एक ज़िंदगी में एक बार तो गा लेना चाहिए। ऐसे गाया हूँ काफ़ी, मतलब इधर उधर एक आध, बट एक कंप्लीट जिसको कहते हैं कि एक एल्बम की शक्ल में, सोलो एल्बम बतौर गज़ल सिंगर। तो आता था स्टूडियो 2-3 घंटा, एक ही लूप लगा के और एक गज़ल को गाता रहता था, फिर उसमें से एडिट किया और लगा दिया। तो ये प्रोसीजर रहा पूरे एल्बम का। और इसमें बहुत मिनिमल ऑर्केस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंटेशन है। संतोष मोलेकर जी ग्रैंड पियानो पर हैं, अभी शायद आए नहीं वो। संतोष हैं यहाँ पर। राहुल देव बेस गिटार पर, और संजय दास जिनको हम बापी कहते हैं, वो गिटार, सारे गिटार दुनिया भर के जितने भी गिटार से सब लेके आ गए थे। और एक आध गाने में मैंने वायलिन बजाया। इस एल्बम की जो खासियत है कि मेरे जितने जो पुराने सेशंस, पुरानी फाइल, पुराने हार्ड डिस्क में जितने मेरे भाई के जो बजाए हुए तबले हैं, हीरा पंडित जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका संगीत और उनका आशीर्वाद वो जिंदगी भर है और रहेगा। वो मैंने सारा उठा के एल्बम में पेस्ट किया, उसको ट्रांसपोज करके, उसको उस पीपीएम पे ला करके, उसको टाइम स्ट्रेच करके, उसका ट्यूनिंग करके, क्योंकि मेरा एल्बम हो रहा है और उसमें हीरा का तबला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहली गज़ल जो है मनोज मुंतशिर जी ने लिखी है। मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं वो। आज उनकी मदर लॉ का कुछ तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इसलिए आ नहीं पाए वो, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। एनीवेज, ये तो ज़िंदगी का सच्चाई, ये तो चलता ही रहता है। तो ये पहली गज़ल मनोज मुंतशिर साहब ने लिखी है, और कोशिश की है मैंने कि जो भी है, जो नाम है, कि दिल से दिल तक पहुँचे। और ये गज़ल हीरा मेरे भाई को मैंने समर्पित की। और हमारे बड़े भाई साहब राम भाई भी और अनूप भाई भी पधार चुके हैं। मेरा एक और चीज बताऊं, भाई साहब आगे इसलिए नहीं, मैंने काउंट किया अभी थोड़े दिन पहले, 98 एल्बम्स मैंने इनके साथ ही किए। डबल एम कंपनी भाई साहब ने लॉन्च की थी। तो वर्ली में 3 स्टूडियो लगे हुए थे, रेडियो जेम्स सामने, रेडियो वाणी, और बॉम्बे बेकरी के सामने डिजिटल डोमेन। एक दिन में हम एक एल्बम करते थे लाइव। रेडियो जेम्स में सिंगर बूथ था, और वहाँ पे रफ़ी साहब की फ़ोटो थी, मुझे बराबर याद है। वहाँ भाई साहब गाते थे, एक तरफ रिदम सेक्शन, एक तरफ हार्मनी सेक्शन, एक तरफ सारे सोलोइस्ट, बीच में मैं भी वायलिन भी बजाता था, कंटेक्ट भी करता था। तो मुझे मौका दिया उन्होंने, मेरी जर्नी इनसे शुरू हुई। उसके बाद जगजी जी के पास गए। मेरे भाई राम भाई यहाँ पे, हमारे बड़े भैया, बड़े भाई जो होते हैं वो पिता तुल्य होते हैं, राकेश भाई, भाभी भाई, सब लोग यहाँ पर हैं मेरे संजू। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे आप सबकी आज्ञा लेते हुए शुरू करता हूँ। पहली गज़ल, तेरे जाने का तो सदमा नहीं है, मगर बरसों से दिल धड़का नहीं। अच्छे म्यूजिशियन हैं, और ये काम भी आप इनका देख ही रहे। मेरा छोटा भाई है, मैंने बोला बिल्कुल टाइम नहीं यार, मैं भी भागा दौड़ी में हूँ, तुम भी भागा दौड़ी में हो, तो आ जाओ 2 घंटे में स्टूडियो में कर लेते हैं। और उन्होंने कर दिया। एक बार गुरु के लिए जोरदार ताली। सुरेश भाई, हरी भाई, बापू जी, राम भाई, भाई साहब। मैं जब बाबू जी के पास गया और मैंने एल्बम सुनाया, तो वो शब्द मेरे पास, या वो जो उस समय का जो लम्हा था, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कुछ वीडियो कर लिया है, लेकिन वो मेरे पास ही रहेगा। मुझे बाबूजी ने बहुत आशीर्वाद दिया, और मुझे अंजीर की बर्फ़ी खिलाई, शुगर फ्री।
तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। एक मेरी बहन यहाँ पर है, रचना अरोड़ा, जो साइलेंटली बहुत कुछ कर देती है। जिक्र मतलब नॉर्मल बात हो रही थी, और इसका श्रेय भी मैं प्रतिभा को दूंगा कि बोले एल्बम का क्या सीन है, क्या कब लॉन्च हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा 21 तारीख, एक डेट थी माइंड में, 21 तारीख। हरी भाई हम लोग साथ में थे दुबई में। मैंने हरी भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी क्या मौजूदगी में आपकी मौजूदगी ना हो उस समय। बोला बिल्कुल। सुरेश भाई से बात हुई, अनु भाई से बात हुई, सब आज यहाँ मौजूद हैं। तो लॉन्च का ये था कि डिजिटली कर देंगे, हो जाएगा। तो बोला नहीं कुछ होना चाहिए बड़ा। उसी रात 1:30-2 बजे मेरी इनसे बात हो रही थी। इन्होंने बोला काम करते हैं, यहाँ करते हैं। यहाँ पे मैं HSBC को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, और स्टार एग्री के जो अमित अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इस इवेंट को सपोर्ट किया है। थैंक यू मेरी बहना, थैंक यू म्यूजिकल फन एंड स्टार एग्री। तो नेक्स्ट गज़ल वीडियो नहीं है, वो वीडियो 15 दिन बाद आएगा, क्योंकि एक ही गज़ल 15 दिन बाद लॉन्च होगी। सिर्फ ऑडियो है, वो आपकी नज़र। शकील आज़मी साहब का कलाम है। डर है जलने का तो फिर आग लगाते क्यों हो, प्यार करते हो तो फिर दुनिया से छुपाते क्यों। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में। एक अच्छी टीम होती है, टीम वर्क ही वर्क करता है एंड ऑफ द डे। तो संतोष मोलेकर मतलब 22-25 साल से साथ में काम कर रहा है, और सेतु रमन है नहीं भी, वो बाहर हैं मेरे, जो जिनके साथ मैं हर गाना रिकॉर्ड करता हूँ। राहुल यहाँ पर हैं, राज है, राज प्लीज कम। जो परकशन आप सुन रहे हैं वो राज ने किया है। बहुत टैलेंटेड लड़का है और बहुत मेहनती है। गुरु का काम देख ही लिया आपने। और संतोष आई थिंक कहीं ट्रैफिक में अटका हुआ है। और संजय दास उर्फ बापी, मैंने बोला बापी का दिन में बात हुई, बोला गुरु मैं बाहर हूँ। मैंने बोला लेकिन हरी जी तो यहाँ पर है, तू कहाँ बाहर है? तो कह रहे वो कहीं पहली बार ऐसे एल्बम का उद्घाटन देखा और सुना। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कभी भी कर पाया हूँ, और आज बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ मेरे यहाँ पर इनका एल्बम रिलीज हो रहा है। और भगवान करे कि सर्वविदा मिला और होगा, इसलिए मैं इन्वॉल्व हुआ, नहीं तो मैं नहीं हुआ। हमारे सब हमारे यंग भाई बहन हैं, सब अच्छा गाते हैं, लेकिन आज आपको पकड़ के लिए और नहीं लाते तो मेरा झगड़ा हो जाता। अरे क्या बात है, मेरी खुशकिस्मती है ये। हरी भाई। दीपक भाई दिल खुश कर दिया भाई, बहुत बहुत खूबसूरत गाया आपने, और ये बहुत अच्छा किया आपने। ये तो एक बहुत बड़ा कलाकार हम सुन नहीं पाते। सच में कह रहा हूँ मैं, कोई मतलब मुँह देखी तारीफ नहीं है, ये हकीकत है कि जो आप आराम से जो किए, ये इस पूरे आपका लाइफ का जो निचोड़ है वो दिख रहा है आपके गाने में। और आप ये बस ये शुरुआत है, आप करते जाइएगा। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। पंडित जी चरण स्पर्श, स्टेज पे सब बड़े बड़े कलाकार और दीपक को प्यार करने वाले हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। दीपक के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना उसके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है वो क्या चीज़ है। जैसे उसका वायलिन बोलता है, वैसे उसका गला चलता है, ये आज मालूम पड़ा। क्या बात है। वो क्यों नहीं गाएगा ऐसे, क्योंकि
उसका जन्म ही गाने वाले घर में हुआ है। और जो हमारे आदर्श थे शंकर अंकल और शंभू जी, अब बीच बीच में वायलिन बजाना चाहिए, बाकी उसने गाना चाहिए। यही करा था आगरा में। और मैं बहुत छोटा भाई है वो मेरा बहुत प्यार, और इस एल्बम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सारी दुनिया में ये एल्बम गूंजे, यही भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। अब अनूप जलोटा जी बोलेंगे। सुरेश भाई, आप सबका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। दुर्गा दी प्लीज आ जाओ ना, आइए ना, दिल में जगह है। मीनल प्लीज कम बाबा। ओवर टू माय बिग ब्रदर पद्मश्री वन एंड ओनली अनूप जी। ये फैसला करना मुश्किल है कि ये वायलिन ज़्यादा अच्छा बजाते हैं, गाने ज़्यादा अच्छा। इनका जो एक्सपीरियंस है इतने साल का वायलिन बजाने का, वो इनके गाने में बजता है। जो जगह आसानी से गले से निकल रही है, जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो हल्का फुल्का गाता हूँ, लेकिन वो ऐसा आसानी से लहरों की तरह जगह निकल रही है। बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। और ये भी अच्छी बात है कि जितनी गज़लें हम लोगों ने सुनी वो सब अलग अलग अंदाज वाली थी। उनमें ये नहीं था कि कोई एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है, सबका अपना अंदाज, अलग अलग अंदाज था। तो बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये गज़लें घर घर गूंजें और लोग दीपक को एक सिंगर की तरह भी उतना ही प्यार दें जितना एक वायलिनिस्ट की तरह दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजय साहब, आप भी अजय जगह है। अजय जैन भाई हैं क्या यहाँ पर? अजय जैन जी, देखो ये अजय भाई मेरे छोटे भाई बोलो, बड़े भाई बोलो, या हम उम्र हैं शायद, स्पेशली दिल्ली से आए हैं। प्लीज आइए, प्लीज भाई, प्लीज कम, आइए स्टेज पे। ओवर टू राम भाई। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे छोटे भाई दीपक ने इतना खूबसूरत ये कार्य किया है। ये हमारे बुज़ुर्गों की लेगेसी को, अच्छा म्यूज़िक और सच्चा म्यूज़िक, उस लेगेसी को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं और संगीत प्रेमियों को अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ईश्वर इसको खूब कामयाब करे। और हमारे स्वर्गीय चाचा जी ने, शंभू जी ने, सभी भाइयों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ बाकायदा गाने की भी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि गाना जो है वो मुख्य है, तो गाने की भी उन्होंने ट्रेनिंग दी और इंस्ट्रूमेंट तो सबको अच्छे सिखाए। तो ये हमारे बुजुर्गों का, मेरे पिताजी और चाचा जी का आशीर्वाद है कि हम सब भाई संगीत की सेवा कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमित भाई कहाँ पर है? मेरे भाई, मेरी माँ समान, माँ ही बोलता हूँ मैं उनको, वो वहाँ बैठे हैं और दूसरी माँ यहाँ बैठी हुई जो आशीर्वाद देने आए हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज पूरा परिवार और मेरे दोस्त, मेरे फैमिली सब साथ में हैं। मैं बहुत इमोशनल भी हो रहा हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मैं राकेश भाई को बोलता हूँ कि वो भी मुझे इस मौके पे आशीर्वाद दे दें। इतने बड़े बड़े लोगों ने इतना अच्छा बोला, और मैं तो कुछ सोच भी नहीं मैंने कुछ सोचा, लेकिन मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। खैर कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि दीपक के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो बचपन से ही, जिसे कहते हैं ना, ये पैदाइशी, ये जो चीज़ें पैदाइशी होती हैं, और ये जितना अच्छा वायलिन बजाता है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये गाता है। और मैं क्या कहूँ, और ये हीरा पंडित जो मेरा भाई, मेरा दिल, वो
इतना अच्छा तबला प्लेयर और इतना अच्छा उसको भी गाने का और अरेंज का कंपोज बहुत सी चीज़ों का वो बहुत ही उसमें अच्छा था। तो बस दीपक के लिए यही है कि दिल से मेरी हमेशा दुआ है, आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं दुर्गा दी को दे रहा हूँ और उसके बाद हम फिर हाँ चलो थोड़ा सा बात कर लो। बार भी खुल गया है, खाना भी खुल गया है। इसने मुझे बहुत सारा श्रेय दिया कि मैंने इसको ताजमहल में गवाया और सबसे पहले गवाया, लेकिन बात तो दरअसल ये है कि अगर मैं जानती ही नहीं कि इतना अच्छा गाता तो मैं क्यों इसके पीछे पड़ती। सही बात है। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी हिज जर्नी। बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और ये कहना बहुत आसान है कि ये इस परिवार में जन्मे हैं इसलिए गा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है मैं एक जीता जागता मिसाल हूँ। तो बात तो सच ये है कि उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। उन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप संगीत का ही रास्ता अपनाते हैं तो दीपक जैसी एक राह उज्ज्वलित होती है, प्रज्वलित होती है और सब एक दूसरों को रोशनी देती है। दीपक ने इतने सालों में ऑफ कोर्स जैसे अनूप जी के साथ उसका सफ़र शुरू हुआ है एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, और फिर सब जानते ही हैं कि द ग्रेट लेजेंड जगजीत सिंह साहब के लिए मतलब उनका क्या रिश्ता था ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और वो रिश्ता इतना खूबसूरत आया। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर द ग्रेट लेजेंड जगजीत जी की रूह और अगर विरासत किसी को मिली है तो वो एक यहाँ और वो विरासत को उसने अपने दिल में इतनी खूबसूरती से जगह भी दी है। मुझे याद है उनका 70th बर्थडे था और दीपक वहाँ पर मंच पे बजा रहे थे और बहुत अच्छा संगीत चल रहा था और पता नहीं उनके मन में क्या है, वो सबको छोड़ के मेरे पास में आके बैठे और कंटिन्यूसली बोल रहे थे ये देखो कितना अच्छा म्यूजिशियन है, कितना अच्छा बजा रहा है। मैंने कहा मैं जानती हूँ, नहीं यही मार्केट में चल रहा है, इसको बहुत बढ़ा रहा है। मैंने कहा मार्केट, मैंने कहा जीती जाती सुपर मार्केट तो आप है। हम कौन सा मार्केट, मगर एक पिता समान जुनून जज्बा जो देखा और ऐसा आशीर्वाद का हकदार है ये। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने अपने आप को एक पिता समझ के इसके बारे में जब कहा, और मैं जानती भी थी लेकिन कुछ ऐसी साल बीतते गए एक बार रात के, हमेशा इनको 2-2:30 बजे का जो रात का समय होता है ना वो कुछ जादुई समय तो एक बार फोन आया और ये बोले कि मैंने एक कॉम्पोजिशन की है और ये बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, आई थिंक 2014 करेक्ट, 12 साल। तो वो मैंने बोले कि कैसी लग रही है आपको, मैंने इसको ठुमरी अंदाज में और इसको ऐसे गाया, तो गाने लगे और मुझे याद है मैं रोने लग गई एंड आई वॉज हाफ इन माई स्लीप और मैं रोने लगी। मैंने कहा आई होप यू आर सिंगिंग इट, इतना ही कहा। बोले नहीं श्रेया गा रही है। श्रेया ने कमाल गाया। अगर उस कॉम्पोजिशन की को कोई अगर मैं कहती हूँ कि उसको कोई क्या कहते हैं उसको जस्टिस दे सकता था तो मुझे लगता है शी इज the finest singer of the country today and undoubtedly the queen। इतना खूबसूरत गाया लेकिन मेरे दिल में एक थी कशिश कि दीपक बहुत अच्छा गाता है, कमाल गाता है, इसको कब सुनेंगे, इसको मेरे दिल की एक अंदर से ख्वाहिश बढ़ती गई कि आई हैव टू हियर हिम मोर, एक भूख बढ़ती गई और फिर सिलसिला चलता रहा। बहुत कुछ अलग अलग काम होते रहे और हर चीज़ में जब गाने की बात आती तो हारमोनियम कंपोज करने की बात आती तो हारमोनियम लेके गाने लगता और मैं सुनती रहती कि इसके जो खटके हैं, इसके जो नज़ाकत है और एक सोल है। आपको अगर पहले सुर से लेके आखिरी तक अगर कुछ समा एक ही सुर में था कि सुकून है, वो मैच्योरिटी है। ये सुकून मांगने से नहीं आता, अंदर से जब आप घुले हुए रहते हैं ना, म्यूजिक में डूबे हुए रहते हैं शहद की तरह, आप बिल्कुल उसमें एक मय हो जाते हैं तो उसमें आत्मा तक, रूह तक ये बात पहुंचती है। दीपक टुडे along with your great father, great uncle,
जगजीत अंकल, एवरीबडी, और जो हरी चाचा जी ने बात की, हरिहरन जी ने बात की, सुरेश जी ने बात की, अनूप जी ने बात की, वी आर हियर to see, witness the journey. We are here because we all love you, and we are here because we expect lot more from you from today. Jai Ho. थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि अभी पृथ्वी बोला कि सब बोलेंगे तो फिर बार बंद हो जाएगा, लेकिन बोल छोटा छोटा बोल दो। चलो, ये सारी कॉम्पोजिशन जो है ज़्यादातर मेरे सामने बनी। यस। तो मैं तो कह रहा था पंडित जी से कि पंडित जी ये वाली करते हैं, ये गाता हूँ मैं, ये करते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैंने खुद नहीं गा दिया कि पंडित जी गाएंगे, और वो ऐसा गाए हैं कि शायद मैं ऐसा नहीं गा पाता। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो बहुत और ये सबसे ज्यादा खुशी इस एल्बम की मुझे है, और ये आप जानते हैं। थैंक यू ऐसा नहीं है सबको। मैंने पृथ्वी की कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, लेकिन इसको भी सारी गजलें पता है। एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, जिगर मुरादाबादी साहब ने एकदम सही कहा है, दिल को सुकून और रूह को आराम आता है ये एल्बम सुनने के बाद में। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपक छोटा भाई है मेरा, और मुझे बड़ी खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। उसको बहुत पहले गाना चाहिए था, आप गाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत कंपोज करता है, अरेंज करता है, और म्यूज़िक में डूबा हुआ है, जैसा दुर्गा ने कहा, म्यूज़िक में डूबा हुआ है। तो बस इसे बहुत सारा आशीर्वाद, और बहुत खुशी हुई मुझे ये पाँचों गज़लें सुनकर, बहुत आराम मिला, बहुत सुकून मिला। ओवर टू रचना नाउ। मैं क्या ही बोलूं भैया, यू आर अ रॉक स्टार। बहुत बहुत खूबसूरत। हम लोग ने लास्ट ईयर विटनेस किया उनका डीपी म्यूजिक क्रिएट करना, एक प्लेटफॉर्म लास्ट टू लास्ट ईयर, और अब ये आना सब मिरेकल है, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। बड़ी बड़ी आपने खूबसूरत बोला है। अजय भाई, एक आप, फिर बस हम अनवेल करते हैं। स्वप्निल दे देता है क्या बाबा? मुझे ना गाना आता ना बोलना। सुमित आई एम प्रेजेंटिंग गुलजार साहब, उनके विशेष आपके लिए सर ने भेजी। थैंक यू। मुझे बिल्कुल पता है, और उनका आशीर्वाद। अच्छा, एक गुलजार अंकल से बात याद आई। मैं बस इस बात के बाद है ना, बोलना तो मतलब इतना चाहता हूँ कि पूछो मत, क्योंकि भड़ास निकाल रहा हूँ। एक बार क्या हुआ सुरेश भाई, मैंने एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम नहीं सॉरी, एक जावेद अख्तर साहब का एक टाटा स्काई के लिए एक शो था। उसमें मैंने करीबन 102 गाने किए थे। हाँ, टेम्परेचर है कि संजू ने किए थे प्रोग्राम में सारे। तो उसमें कुछ दोहे थे, और आई थिंक 40 या 30-35 दोहे थे, और कुछ 60-70 गजलें थी। तो मुझे एक दिन फोन आया, पहले तो जावेद साहब को मैं भेजता था क्यू ट्रैक गा के, तो ये रूप जी गा रहे हैं, ये अपना वो गा रहे हैं, ये वो, ऐसे मैं उनको बताता था। एक गजल में उनका फोन आया मुझे, बोले ये क्यू ट्रैक किसका है? मैंने मेरा है। बोला किसी से मत गवा, ये तू ही गा। तो मैंने बोला ये क्यू ट्रैक है, लेकिन तो फाइनल तो कर। बोला नहीं, फाइनल भी डब मत करना, ऐसे ही रखना। और वो गजल शूट वूट हुई, और सब बड़े अच्छे से हुआ सब कुछ। जब वो रिलीज हुई तो गुलजार अंकल का मुझे फोन आया, अजय भाई जानते हैं, बोले दीपक तू गाना शुरू कर दे। उनका पहला शब्द ये था, तुम इतने अच्छे गाते हो यार, और ये गाते क्यों नहीं तुम? मैं तुम्हारा देख रहा हूँ। तो बस ये सबका आशीर्वाद है, और बस अब मैं बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया। हसूम अंकल यहाँ पर हैं, शेखर भाई के पिताजी यहाँ पर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां छाएं। भाभी, मेरी बहनें, मेरे फैमिली सब यहाँ पर हैं। अब आ जाइए प्लीज, वो दे दीजिए मुझे। Special compliments to Harsh. I have never heard anybody else speak so beautifully about him. अरे इधर तो आओ, तुम इतना दूर हो यार, इधर आओ प्लीज कम। क्योंकि जोरदार तालियां राष्ट्र के लिए। यस, राजेश जौहरी जी की सुपुत्री, और बहुत बहुत ही रूहदार स्वप्निल, कैन यू प्लीज? हाँ, वो दे देना। अच्छा, बुके भी दे हैं तो दे दीजिए, लाए हो तो। पहले पंडित जी से शुरू करो बाबा।
अनूप भाई स्वागत कर रहे हैं पंडित जी का, और अनूप भाई का स्वागत करेंगे हम, और बुके कम पड़ जाएगा तो उसी को रोटेट करेंगे। रचना जी आप यहाँ पे अनूप जी का स्वागत आप करिए, और आप ही सबका स्वागत करिए। मैं कुछ नाम अगर भूल रहा हूँ या कुछ तो प्लीज मुझे माफ करना। और मेरे ये बहुत खतरनाक भाई है सौरभ भाई, बहुत गंदा सुनते हैं ये, बहुत खतरनाक सुनते हैं। इसलिए भी जोरदार तालियां एक बार। सुरेश भाई, प्रतिभा आप ही दे दो, आ जाओ प्लीज। अब वो दे दीजिए और सब नजदीक आ जाइए। अमित यार आ जाना, इतना दूर कर। बैठे हाँ बैठे थोड़ा सा नजदीक बैठे सर, जस्ट कम क्लोजर ना प्लीज, थोड़ा जगह आ जाओ। पंडित जी, अनु भाई साहब जोरदार तालियां। सभी यार आ जाओ मेरे दोनों बच्चे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से धन्यवाद, यहाँ आए और मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू सर। एक ये फोटो मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम एक लम्हा है, इसको मैं सदियों जीऊंगा। आज तो पंडित दीपक पंडित हो गए। बॉम्बे गोवा बॉम्बे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. जी आइए, दरबार खुला है और जहाँ बार बार जाना है वो यही मार लेगा। कि जो उन्होंने गाना भी स्टार्ट कर दिया है, एक तरह से गजल उन्होंने 5 लॉन्च किए, क्या कहेंगे आप, क्या आशीर्वाद? दीपक पंडित जी का वायलिन तो सबने सुना ही हुआ है सारी दुनिया में, लेकिन आज इनका गाना सुन के अब ये फैसला करना ज़रा मुश्किल होगा कि ये गाना ज़्यादा अच्छा गाते हैं या वायलिन ज़्यादा अच्छा बजाते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो रूदारी वाला काम है, गाना भी इनका वायलिन भी। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि एक और सिंगर गज़लों का, गज़ल के सिंगर्स की ज़रूरत भी है, बहुत कम है, तो अब दीपक पंडित भी उसी लाइन में आ गए, हमें बड़ी खुशी। थैंक यू। सही ना को लॉन्च किया है डीपी म्यूजिक के द्वारा एज अ सिंगर, कंपोजर एंड ऑल्सो अरेंजर। तो ये जो उनका एक कंप्लीट जो म्यूजिशियन का जो एक रूप है वो लोगों तक पहुंचा है, मुझे बड़ी खुशी है। गाते तो वो पहले से ही थे, लेकिन आज लोगों तक पहुंचेगा। पिछले साल फरवरी में हमने ताजमहल में 28 साल के बाद जब ताजमहल खुला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे वो मौका दिया कि आप यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए। तो उस वक्त मैंने दीपक को कहा कि आपको गाना है। 2 दिन का वो एक प्रोग्राम था, ताजो ताज। तो वहाँ पर जब उन्होंने पहले जब गाया, उसके बाद तो फिर रुकने का नाम ही नहीं था, बिकॉज पूरी दुनिया को पता चला कि ये गाते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज ये इतने खूबसूरत 5 जो उन्होंने गज़लें जो कंपोज की है, इतनी खूबसूरत पोइट्री इन्होंने चुनी है, इतने बड़े बड़े शायरों की, और उसको समझते हुए गाया है। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस अवतार, कंप्लीट अवतार ऑफ दीपक पंडित, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप द म्यूजिक लवर्स ऑफ द वर्ल्ड गिव हिम ऑल हिज लव एंड ऑल देयर लव एंड ब्लेसिंग्स टू हिम। थैंक यू सर, प्लीज जॉइन। दीपक पंडित मेरे छोटे भाई हैं, मेरे चाचा स्वर्गीय श्री शंभू जी के सुपुत्र हैं, और मेरे पिताजी और चाचा जी शंकर शंभू जी, उन्हीं से हम लोगों को म्यूज़िक की जो लेगेसी मिली है, म्यूज़िक की तालीम मिली है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि दीपक का ये एल्बम जो है एज अ सिंगर लॉन्च हुआ है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत गाया है दीपक ने। वायलिनिस्ट तो वो बहुत बेहतरीन है ही, लेकिन सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत ही खुशी है। मेरी तरफ से मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं, और उन्हें बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से है कि ईश्वर उन्हें खूब आगे बढ़ाए और वो इसी तरह से संगीत की सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे, आज कितनी कमाल कंपोजिशन रही सर की? सर का मैं फ़ैन रहा हूँ, उनके वायलिन का, उनके
कॉम्पोजिशन का, और गाना भी उनका मैंने सुना था, बट आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो प्राउड दैट उन्होंने एक कदम लिया, दैट ही इज़ रिलीज एन एल्बम एंड सच अ ब्यूटिफुल एल्बम, और इट वाज अ हाई टाइम फॉर हिम टू, और हम पीछे रहें इस बात के कि प्लीज़ कीजिए, यू शुड सिंग मोर, एंड फाइनली दिस द डे हैज़ कम एंड आई एम सो हैप्पी टू एक्सपीरियंस इट विद एवरीबॉडी. थैंक यू. थैंक यू. रोलिंग सर, क्या कहना चाहेंगे दीपक सर के लिए, आज उनके 5 एल्बम उन्होंने रिलीज़ किए? दीपक सर के लिए बेस्ट विशेस कहना जो है ना, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड. आई विश जगजीत सिंह वॉज अलाइव टुडे बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फादर, ही वॉज लाइक अ गुरु, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरी रूह की आवाज़ है दीपक. वॉट एवर ही वुड सिंग, दीपक वुड नो एक सुर के पहले कि जगजीत जी क्या गाने वाले हैं. तो इनके बिना वो अधूरे थे, इनके बिना ये अधूरे है. तो आई फील अ ग्रेट लॉस ऑफ जगजीत जी टुडे, बट आई एम श्योर wherever he is very very happy, he is very very thrilled, and he is giving all his blessings to Deepak. Deepak was 50% of Jagjit Singh, and now he will be 100% of what he used to sing. So I am very very happy, and all the best wishes to Deepak. Thank you. First time it's He mentioned debut that. in singing. Okay, it's First time his he's first singing. time. Okay. उन्होंने 5 गजल्स निकाला है जी, एंड वो बड़ी बड़ी आर्टिस्ट के साथ में है, लाइक बशीर बद्र जी एंड जिगर जिगर. तो it's an album. हाँ, एल्बम है वो. एल्बम प्रॉपर. या प्रॉपर 5 सॉन्ग्स. गुलाब जी खुशी. And उसका launch event है. आप पूछो. नमस्कार. अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, आज दीपक जी की 5 एल्बम लॉन्च किए गए हैं, कितने खुश हैं, उत्साहित हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सभी को मेरा नमस्कार. मैं हूँ स्नेहा शंकर और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है कि मेरे जो चाचा जी हैं दीपक पंडित जी, उनका एल्बम लॉन्च है जिसमें 5 गज़लें वो लेकर आ रहे हैं जो दिग्गज कलाकारों ने लिखी हुई है, जो लेजेंड्स है. एंड स्पेशल बात यह है कि दीपक चाचा, वी ऑल नो, इज़ अ लेजेंडरी म्यूजिशियन एंड म्यूज़िक कंपोज़र, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो गज़लें हैं वो खुद गा रहे हैं, विच मेक्स इट मोर स्पेशल. एंड आई एम सो हैप्पी. एंड यू नो, मैं उनकी फ़ैन हूँ, बचपन से ही फ़ैन हूँ मैं उनकी. ही इज़ फैमिली, वो तो है ही, बट मैं उनकी फ़ैन हूँ. एंड हिज़ वर्क इज़ माइंड ब्लोइंग, इट्स अमेजिंग. हमको इतना कुछ सीखने को मिलता है उन्हें देख के. एंड आई एम सो हैप्पी. आई वुड जस्ट लाइक टू विश हिम एंड द होल टीम कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गज़लें बहुत खूबसूरत हैं, आप उनको सुनिए, उनको प्यार दीजिए. एंड दीपक चाचा ने खुद ने गाया है, सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन आउट देयर. थैंक यू. थैंक यू सो मच.